Hello students, in the last video I was teaching you your first lesson of your prose, that is a letter to God, and I taught you the first part, the boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pulse. The boys of Lencho, they became very happy. They came out of their house. Why? To collect the frozen pulse. Frozen pulse here, hailstones. Now, the next paragraph is it's really getting bad now. Means falling of the stones that is really getting bad now. Means it was very bad for the crop. Exclaimed the man. Who is the man? Lencho is the man. लेंचो ने विस्मय पूर्वक एक बात कही. He became very sorrowful because he was watching the falling hailstones and destroying his crop. That is why he was very sad. तो उसमें विस्मय पूर्वक बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा हो रहा है. उसने एक डायलॉग कहा. इट इज़ अ डायलॉग ऑफ लेंचो. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. मीन्स नाउ this event, this happening of falling hailstones, that was very bad, misfortunate for his family. Next he also says, I hope it passes quickly. I hope means he hopes. It was his hope that it would pass quickly. जल्दी ही ये गुजर जाएगा, ऐसा वो आशा करता है. It did not pass quickly, but misfortunately the storm of hailstones did not pass quickly. जल्दी नहीं गुजरा ये. For an hour, 1 घंटे तक the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. For an hour, 1 घंटे तक hail rained means hail stones rained. Where? On the house, on his house.
garden. There would be a garden also near his house. Hillside. The hill on its crest his house was situated. Cornfield. Cornfield means on his crop, उसकी फसल पर. And on the whole valley, पूरी घाटी में 1 घंटे तक ओले गिरते रहे. What was the result? Result क्या हुआ इसका? The field was white. जो खेत था वो सफ़ेद हो गया. As if means मानो. Covered with salt. नमक से ढक दिया गया. Not a leaf. एक पत्ती भी. Remained माने बची. On the trees, पेड़ों पर. तो जब पेड़ों पर एक पत्ती नहीं बची तो आप समझ सकते हो कि उसकी फसल का क्या हुआ होगा. जो वैली में ट्रीज थे उनकी एक भी पत्ती, सारी पत्तियां हेल स्टोन्स के द्वारा नीचे गिर गई. ऑल द लीव्स फेल डाउन by the cruel falling of the hailstones. The corn was totally destroyed. It was the result. Corn means, I told you the meaning of corn. Corn is used for मक्का as well as grains. अनाज के लिए भी यूज़ किया जाता है. तो जो भी अनाज था वह was totally means entirely destroyed means ruined. By the cruel falling of hailstones. The flowers were gone. All the flowers which were dotted here and there in his field along with corn, they were gone. वे चले गए means they also fell down by the stroke of, by the hard stroke of hailstones. From the plants माने पौधों से जो फूल थे, जो पौधे थे कॉर्न के, उसमें डॉटेड यूज़ किया है राइटर ने. जो इधर उधर लगे हुए थे फूल वो भी नीचे गिर गए. Lencho's soul was filled with sadness. Being a farmer, the capital of a farmer is his crop. Because the whole family of the farmer survive on the grains, on the corn, which
the farmer get from his crops. लेंचो's soul was filled with sadness. सैडनेस से भर गई उसकी अंतरात्मा. When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field. वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ. And he noticed the devastation of hailstones, devastation of his crop by hailstones. विनाश को देखा उसने. हेलस्टोन के द्वारा जो उसके खेत का विनाश किया गया, उसकी क्रॉप को बर्बाद कर दिया गया, उसको उसने नोटिस किया. Standing where? In the middle of the field. And said, और बोला क्या? To his sons, अपने बेटों से बोला. A plague of locusts. Locusts are the insects which destroy the crop. जिनको हिंदी में हम टिड्डियाँ कहते हैं. वो क्या करती हैं? फसलों को बर्बाद कर देती हैं. Suddenly they attack where? On the crop and destroy the whole corn. पूरे अनाज को वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं, खा जाती हैं. और हियर प्लेग मीन्स, प्लेग इज़ अ डिसीज़, एक बीमारी होती थी. दैट स्प्रेड, जो फैलती है फ्रॉम माउस, चूहा से फैलती है. अ प्लेग ऑफ लोकट्स मीन्स, टिड्डियों की प्लेग नाम की बीमारी. अगर टिड्डियों ने भी आक्रमण किया होता प्लेग की तरह, एज ए प्लेग, इफ लोकट्स अटैक्ड वेयर? ऑन हिज क्रॉप, तो क्या होता? वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. ये जो बचा हुआ है, जो फसल बची हुई है, मीन्स जो थोड़ा बहुत दिख रहा है, इससे तो ज़्यादा ही बचाती वो. हेलस्टोन ने तो पूरा बर्बाद कर दिया. वो भी कुछ छोड़ देती, लेकिन कुछ छूटा नहीं. The hail has left nothing. Hailstones had left nothing. कुछ भी नहीं छोड़ा था उसने. This year we will have to no corn. इस साल हम लोगों के पास अनाज नहीं होगा. Who is saying this? Lencho is saying this. To whom? His sons. Then it came the next night. अगली रात आई. तो that night was a sorrowful one. वो रात एक दुखपूर्ण रात थी. Really. Now Lencho is thinking, all our work for nothing. All our work for nothing.
is an idiom. It means wild goose chase. मतलब हमारे कार्य का कुछ भी परिणाम नहीं निकला, निरर्थक प्रयास रहा। There was no one who can help us. He also knows that there was none who helped him. जो उसकी मदद करता ऐसा कोई नहीं था। We will all go hungry this year. During the year, we will means his family members go hungry. भूखे रहेंगे, अनाज ही नहीं है। But in the hearts of all, लेकिन here all means all the family members, जितने भी परिवार के सदस्य थे उन सभी के दिलों में, who lived in that solitary house, जो उस अकेले घर में रहते थे, means all the family members of Lencho's house, लेंचो के घर के जितने भी सदस्य थे, in the middle of the valley, जो वैली के बीच में solitary house में रहते थे, there was a single hope, एक अकेली आशा थी। उन सभी के पास they had only one hope. Single hope means one hope only, or one hope, a single hope was left in their hearts. And that was help from God. और वो होप क्या थी? ईश्वर से मदद। जब संसार वाले लोग मदद नहीं करते हैं तो केवल ईश्वर का इशारा होता है, ईश्वर मदद करता है। ये कहा भी जाता है, इट्स ऑल्सो आई से, कि बेसहारों का सहारा ईश्वर है। संसार जब तक सहारा बनता है तब तक हम पूर्ण रूप से ईश्वर पर आश्रित नहीं होते। Don't be so upset even though this seems like a total loss. लेंचो ने अपने बच्चों को समझाया कि इतना अपसेट मत हो। Even though, यद्यपि, this seems, ऐसा प्रतीत होता है, like a total loss, माने पूरा का पूरा नुकसान हो गया है ऐसा लगता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, because he had a strong belief in God. Remember, and he also instructs, याद रखो, no one dies of hunger. भूख से कोई नहीं मरता। ये कौन? ऐसा नहीं है, लेकिन कौन? All those people who believe in God, they never die. वे कभी नहीं मरते हैं of hunger. भूख से कभी नहीं मरते हैं, जो ईश्वर के सहारे जीते हैं। That is what they say, no one dies of hunger. यही बात है जो वो कहते हैं, वे कहते हैं, अर्थात संसार के लोग कहते हैं कि all those people who believe in God, who have strong trust in God,
दे नेवर डाई ऑफ हंगर। वो कभी भी भूख से नहीं मरते हैं, स्टारवेशन से नहीं मरते हैं। Although all through the night means during whole night, पूरी रात, लेंचो thought only of his one hope, केवल अपनी अकेली माने एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। Means he kept on thinking of one hope. And what was that? The hope, help of God, ईश्वर की मदद। इसी आशा के लिए, आशा में वो पूरी रात जागता रहा। ईश्वर से जब हम कोई चीज़ की आशा करते हैं, जब संसार से हमारी वो आशा पूरी नहीं होती है, तो कॉन्टिन्यूअस करनी चाहिए, लगातार, जब तक पूरी ना हो। निश्चित पूरी होगी, इट्स श्योर। क्यों? हुज आइज, जिसकी आंखें, मीन्स गॉड की जो आंखें हैं। क्या समझते हो, दो ही आंखें होंगी उसकी? नहीं, इतनी आंखें हैं। नहीं कहा जा सकता कितनी है। एक ही समय पर पूरे ब्रह्मांड को देख रहा है। इतने कान हैं कि एक ही समय में सबको सुन रहा है, और इतने हाथ हैं कि एक ही समय में सबकी मदद कर रहा है। कितना महान है। We must feel this thing in our ways of living also, if we want to live comfortable life. Whose eyes as he had been instructed, जैसा कि उसने इंस्ट्रक्ट किया है बाइबिल में। उसके बारे में इंस्ट्रक्ट किया गया है किसमें? द बाइबिल में। क्या? कि सी एवरीथिंग, हुज आइज सी एवरीथिंग, हर चीज़ को उसकी आंखें देखती हैं। वी कैन नेवर हाइड आवर सिंस, हम कभी भी अपने पाप नहीं छुपा सकते हैं। Even what is deep in one's conscience, यहाँ तक कि वो उसको भी देख सकता है जो किसी व्यक्ति के गहरी आत्मा में छुपा हुआ है। मन की बात भी जान जाता है। Why? Because our bodies are elemented with all those materials which have been made by God. We also take all the things to live properly, they are also gifted by God. Lencho was an ox of a man. Ox of a man is also an idiom. The person who works very hard working person is called ox of a man. Ox कहते हैं बैल को।
बहुत लेबोरियस होता है, हार्ड वर्किंग होता है। तो एक बैल के रूप में बैल के रूप में एक आदमी की तरह उसने अपना जीवन जिया है। मीन्स ही वर्कड हार्ड एज एन ऑक्स, working like animal in the fields, and he also spent his past. How working like an animal means an ox, where in the fields, खेतों में। But still he knew how to write. लेकिन फिर भी वो जानता था कैसे लिखा जाए। मीन्स ही न्यू हाउ टू राइट डाउन। ही वॉज नॉट इलिटरेट, ही वॉज लिटरेट। लिखना जानता था। जानवर ही ना समझ लेना केवल उसको। तुलना की गई है उसके कठोर परिश्रम की। Here the writer has compared his hard working with the hard working of an ox. अब ये नहीं समझना है कि वो बैल था। The following Sunday means coming Sunday, आने वाला जो रविवार था, उस दिन क्या हुआ? द डे ब्रेक। सुबह हुई। He began to write a letter. He started writing a letter to God. ईश्वर को पत्र लिखना उसने शुरू कर दिया। Which he himself would carry, जिसे वो स्वयं ले जाएगा कहाँ? टू टाउन, शहर ले जाएगा, कस्बे में ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स, मेल मीन्स डाक को कहते हैं, डाक में वो स्वयं डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये और कोई चीज़ नहीं थी जो मेल में डालना है उसको, केवल लेटर टू गॉड था। ईश्वर के लिए एक चिट्ठी थी। पत्र में क्या लिखा? What did he write down where in his letter? सबसे पहले ही रोट, उसने लिखा गॉड, ईश्वर, हे भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, कोई नहीं है दुनिया में मेरा। होगा क्या? माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। मैं और मेरा परिवार पूरे साल भूखे रहेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. कितनी अच्छी बात कही है। कह रहा है कि I need means he requires, उसे ज़रूरत है 100 pesos। जहाँ की ये कहानी है वहाँ पर पीसोज रुपए के रूप में और सेंट्स पैसे के रूप में चलते हैं।
तो पीसोज को हम रुपए तो नहीं कहेंगे, पीसोज ही कहेंगे, लेकिन समझ सकते हैं कि 100 रुपए की ज़रूरत है। और किस लिए? देखिए, बहुत इंस्पायरिंग लाइन्स हैं ये, बहुत गजब का मैसेज है। हम सभी को इस मैसेज को अडॉप्ट करना चाहिए। इन ऑर्डर टू मीन्स के कारण से, और किस कारण से? टू सो माई फील्ड, अपने खेत को बोने के कारण से। अगेन माने फिर से। ऐसा नहीं है कि भगवान ने, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भगवान से कोई चीज़ मांगी और उसने दे दी तो उद्यम करना बंद कर देते हैं। खत्म हो जाता है वो। That ends one day। तो अब कर्म भी करना चाहता है, और क्या करना चाहता है? टू लिव, और जीना चाहता है, until the crop comes, जब तक कि फसल नहीं आ जाती। इन दो कारणों के लिए मुझे 100 पीसों चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, आगे क्योंकि हेल स्टॉर्म के बाद डॉट डॉट राइटर ने कर दिया है। इसका मतलब क्या है? गॉड तो जानता है सब कि हेल स्टोन ने क्या किया है उसके साथ। क्या बताना उसको, जब वो उसकी आँखें किसी के अंतरात्मा, गहरी अंतरात्मा की बात भी सब देख लेती हैं, तो क्या वो ये नहीं देख पाई होंगी कि इस बेचारे का खेत डिस्ट्रॉय हो गया। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड। जहाँ पर एड्रेस लिखा जाता है, द प्लेस वेयर एड्रेस इज रिटन, वहाँ पर उसने लिखा था केवल टू गॉड। अब पता तो किसी को सर्टेन मालूम नहीं है। गॉड इज एवरीवेयर, कहाँ रहे, कहाँ है? सभी जगह है। क्या लिखेगा? कितना सरल है। टू बी इंट्यूट इज वेरी डिफिकल्ट, सहज होना बहुत कठिन है। We are full of many demerits. We are not into it. हम लोग सहज नहीं हैं। अब वो कितना सहज है कि चिट्ठी लिख रहा है और उसके इनवेलॉप पर, अर्थात उसके लिफाफे के ऊपर एड्रेस की जगह में टू गॉड लिख रहा है। पुट द लेटर इनसाइड, और उस इनवलॉप के, उस लिफाफे के अंदर उस चिट्ठी को रखा उसने। स्टिल ट्रबल्ड वेन टू टाउन, अभी भी वो परेशान था। टिल नाउ ही वॉज ऑल्सो ट्रबल्ड when he was returning back to his house from the town, having posted the letter to God.
At the post office he placed, पोस्ट ऑफिस में ही उसने प्लेस किया था, अर्थात लगाया था, ए स्टैम्प लगाई थी, टिकट लगाई थी, ऑन द लेटर, लेटर पर, एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे डाल दिया था, इनटू द मेल बॉक्स, अर्थात मेल बॉक्स में जिसमें चिट्ठियाँ डाली जाती हैं उसी में डाल दिया। To be continued in the next class. I will teach you the rest of the lesson. Thank you a lot. Please do comment. Having watched this video, I will upload it in YouTube, and when you will watch this video, you should also comment. You can comment your problems to understand the theme. If the theme is clear, then you are to also comment, sir, I understood well. Okay, thank you. God bless you.